Good morning, all of you. Welcome to taxation. First of all, heartiest congratulations on clearing the foundation. Yes, now we all are preparing for May 22 exams. Okay, हम सब May 22 की अभी तैयारी करने वाले हैं. See, I'm used to speak lot of English, so you can remind me in between कि सर बीच बीच में हिंदी में भी बात करो. क्या था? आई एम विजिटिंग फैकल्टी एट वेरियस प्लेसेस इन साउथ इंडिया ऑल्सो. सो उन लोगों को कैसे इंग्लिश ही चाहिए, करेक्ट, एंड यहाँ पे हिंदी चाहिए. सो आई ट्राई टू मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस. एनीवेज हमें पेपर जो लिखना है वो ऑफकोर्स इंग्लिश में लिखना है ना. सो कुछ नुकसान तो नहीं है आपका इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश. देयर इज़ नो हार्म एज सच, करेक्ट. बट येस, किसी कॉन्सेप्ट को अगर अपने लैंग्वेज में समझना है तो ऑफकोर्स आई विल बी यूजिंग हिंदी एज वेल, and I'll make you write lot of things. Okay, my method of teaching is that I'll make you write a lot of things. मतलब on day one I'm telling you maintain about 2 notebooks, one for GST, one for income tax. सही है. बीच बीच में यहाँ पे Zoom पे भी देखना है who all are joining. Yes, चलो all on Zoom, those who have joined via Zoom. Am I audible and visible to all of you? ठीक से सुन पा रहे हो ना मुझे? Yes, fantastic, fantastic. बीच में yes, fantastic. कुछ डाउट्स है वगैरह तो बोलते हैं ना, करेक्ट? गुड गुड गुड. I can see 9 of you have joined via Zoom and यहाँ पे कितने हैं? 9, 18. Good, good, good. हाँ, so listen, you have to maintain a nice notebook of 200 to 300 pages, for one for GST, one for income tax. कैसे करने वाले हैं? We'll first go through entire GST and then we will do income tax. आप सबको पता है that in taxation we are going to deal with 2 types of taxes. What are those 2 types? Yes, direct tax and indirect tax. All of you watching live, Aparna, direct tax and indirect tax, correct? Okay, what is the weightage of direct tax in your syllabus? देख के आए हो कुछ? 60 and indirect tax 40. 60-40 is the weightage, correct? So indirect tax mainly you will have GST and in direct tax you will have income tax. Okay, indirect tax GST, direct tax income tax. Okay, that is how it is. हाँ, so GST will hardly take by 14th October. I was today working out कि कैसे होगा, तो by 14th October अपना GST हो भी जाएगा, मतलब within 1 month, and then till 11th December approximately we will do income tax. समझ में आ गया शेड्यूल कैसे होगा? हाँ, एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज विल स्टार्ट क्लास एट 9:30. आपका 9 o'clock को अकाउंट्स खत्म होगा. 9:30 विल स्टार्ट विथ द क्लास. 9:30 to 11 विल कीप फर्स्ट सेशन. 11 to 11:30 you all take break. Then 11:30 to 1. So daily we are doing tax for 3 hours. Correct? Now instead of confusing you with half GST, half income tax, what we'll do is complete entire GST first and then do income tax. Accepted all of you? समझ में आ गई सिस्टम? Yes, इशिता? Yes, sir. Okay, very good, very good. हाँ, समझ में आ गई ना सबको सिस्टम कैसे होगा? Yes. So approximately मतलब 14th October का 16th भी हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, because that way the batch is scheduled till 31st December. बट हम एकदम स्लोली जाएंगे तो भी मेरे हिसाब से 11th तक हो जाएगा. ठीक है, बीच में नवंबर में आपको कुछ दिन के लिए ऑफ रहेगा. इंक्लूडिंग दैट आपका बैच 11th दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, नाइसली विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, करेक्ट? हाँ, आई विल मेक यू राइट लॉट ऑफ थिंग्स. बोर नहीं होना है, वो चीज़ें लिखनी है, बिकॉज एट द एंड आप जब मुझे पूछोगे कि सर एग्जैक्टली रिवाइज कहाँ से करना है, तो आई विल टेल यू आपकी नोटबुक बनी हुई है. From that notebook you have to revise the things. Simultaneously along with you I am also writing those things. Of course कुछ sums वगैरह नहीं लिखने, solutions.
when we are solving na, all that things we will solve together, correct, with proper presentation, हर एक चीज, ठीक है. चलो, so let's start with the taxation. Technically, let us start. So you all said the two types of taxes. Okay, मैं क्या करूँगा, एक्सेल शीट मेंटेन करूँगा सेशन वाइज. सो इसको नाम दूंगा सेशन 1. विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी ये ठीक है. Yes, those watching on Zoom, visible to all of you the screen? Yes, sir. Fantastic. So लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स. Why? Because first day I want to see what is exactly tax and what is the difference between direct tax and indirect tax. चलो, so I am writing here direct tax and I am writing here indirect tax. But before that, please tell me, what do you think and what do you know about tax? Yes. एक सीए के लिए टैक्स जानना important है कि नहीं? Why? अच्छा, why have you taken admission for CA? पता नहीं, फाउंडेशन पास भी हो गया अभी. Yes, anyone would like to tell me? एडमिशन सीए में ही क्यों लिया है? सीए ही क्यों बनना है? फॉर लर्निंग अकाउंटेंसी. अच्छा, तो टैक्स का कुछ लेना है. ओके, फॉर लर्निंग अकाउंटेंसी. ओके, लर्निंग अकाउंटेंसी. ओके, आगे जाके ऑडिट ऑल्सो, तो टैक्स छोड़ के सब कुछ टैक्स. अच्छा, बट देखो, आपने किसी को तो देखा होगा कि वन हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and then you would have thought कि let us be a CA, isn't it? ऐसे तो मतलब गूगल पे सर्च करके CA के लिए एडमिशन नहीं लिया है. कोई ना कोई आपके सामने रोल मॉडल तो है कि हाँ, ये मेरे चाचा CA है, ये भाई CA, ये कजिन CA है, ये दोस्त CA है, या फिर मम्मी पापा CA है. कोई तो CA है, देखा होगा. तो आपने जो CA देखा है, जस्ट थिंक एंड डिस्कस विद देम दैट सीए प्रैक्टिस करता है तो पता है. तो उनकी प्रैक्टिस कौन से एरिया में है? वेयर डू दे प्रैक्टिस? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोकेलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट दे स्पेशलाइज इन विच. यस, डू दे स्पेशलाइज इन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, आर दे ऑडिट फर्म? वो एग्जैक्टली क्या करते हैं वो देखो. हर एक के सामने एक सीए है, कोई ना कोई. तो व्हाट डू दे प्रैक्टिस इन? कभी सोचा है? Yes, those who are watching online. चलो, anyone wants to tell me कि आपने जो सीए देखा है वो उसके प्रैक्टिस एरिया क्या है? मतलब मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप क्या होता है. व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट विल यू एग्जैक्टली डू? What type of services will you give to the client? अभी देखो, आप फाउंडेशन पास हो गया, अब इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स एंड फाइनल के 8 सब्जेक्ट्स. इन दिस 16 सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एक सीए है तो आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो. आपका भी कॉस्टिंग का लेक्चर हो गया एक सुबह. तो यू नो, मेकिंग अ कॉस्ट शीट फॉर योर क्लाइंट, गिविंग हिम आइडिया of how his product looks like. उस प्रोडक्ट को कितने को बेचना चाहिए, ये आइडिया देगा कौन? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. गेटिंग द पॉइंट? आप हर सब्जेक्ट को उस एंगल से देखो कि 4 or 5 years down the line I am a chartered accountant and how will I apply this in my economy. ऐसे जब देखना चालू करोगे सब्जेक्ट को, each subject will become interesting. ऐसा नहीं है कि मुझे 100 में से कितने मार्क्स लाने हैं, वो मार्क्स ऑटोमेटिकली आएंगे. मुझे क्या देखना है, इसका जाके इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या होगा इस सब्जेक्ट का. एकदम एक सिंपल सी बात बताता हूँ. एक यंग एंटरप्रेन्योर है जिसके दिमाग में एक आइडिया है कि यू नो, टुडेज जनरेशन इज नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड विच इज हाई इन न्यूट्रिशन वैल्यू.
अभी देखो ब्रेक में आप नीचे जाके आए, कुछ तो चाय पिया, मे बी क्रीम रोल खाया, समोसा खाया. डू यू इंश्योर कि दैट दैट डाइट or whatever you ate gave you 100% rich nutrients? Surely we cannot say. सही है ना. मतलब अभी बाहर इतना खाओगे, या फिर हम जो सब्जियां लाते हैं घर में उसमें भी बहुत सा केमिकल मिला होता है, इवन इन दैट प्रिजर्वेटिव्स. सो माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तो उस क्लाइंट, वो जो मेरा क्लाइंट है उसकी आइडिया क्या है, विल ब्रिंग समथिंग इन टू द मार्केट which is a fast food but which is rich in nutrients. Maggi जैसा fast, but not only what you can say fancy but also rich in nutrition. ये उसका आइडिया है, तो उसने कुछ प्रोडक्ट डिवाइस किया है. Now point is we want to bring that product in market, so he approached me. अब मेरा बोलने का मतलब ये है, he said कि CA sir you can help us in what all things. मतलब what is he asking me? He is asking my scope of work. So what should I tell him as my scope of work? Right from setting up the entity, मतलब वो अभी बिजनेस करेगा, तो वो बिजनेस करेगा एज अ सोल प्रोप्राइटर और एज अ पार्टनरशिप फर्म और एज अ LLP और एज अ कंपनी, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ही विल डू द बिजनेस. So can I as a CA give a service of setting up of that entity, taking out its PAN, permanent account number, getting the GST registration done, because in future they will have to pay indirect tax, in future they will have to pay income tax, so getting the permanent account number. तो क्या ये सब मेरे स्कोप में है? Yes. He will have to launch the product in the market, so he will have to know what is the cost of producing that item. After cost of producing, we should know how much profit margin we should add and what could be the selling price. So we should help him in deciding the selling price. We should know on selling exactly how many products we will be in a no profit no loss situation. So we should know the break even point. ये सब आ गया कॉस्टिंग का पार्ट. Getting it? Then ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मशीन चाहिए, वो मशीन रखने के लिए फैक्ट्री प्रीमाइसेस चाहिए. मतलब ये सब कौन से टाइप के एक्सपेंस हो गए? कैपिटल एक्सपेंस. आपने पढ़ा है फाउंडेशन में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस. ये सिर्फ बुकिश कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये जब आगे जाके आप अप्लाई करोगे ना तो आपको समझेगा कि अरे हाँ, ये तो हम इजीली अप्लाई क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना बेसिक क्लियर है. तो अभी ये जो CA फाइनल तक जाओगे ना, तो वही तो करना है आपको. यू हैव टू गेट सो कॉन्वर्जेंट विद द टर्म्स, ताकि क्लाइंट के सामने जब डिस्कशन के लिए बैठो तो यू कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक आउट. सो यस, अभी आपको समझ में आ गया कि हाँ, 1 CR rupees, 1 crore rupees will be required for land and then plant and machine etc etc. अब समझ लो 1 CR rupees चाहिए, बट क्लाइंट के पास है 20 लाख रुपए, तो 80 लाख कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे 80 लाख? लोन लेना पड़ेगा. यस, मे बी बैंक लोन, मे बी ही कैन इश्यू डिबेंचर्स इफ ही फॉर्म्स अ कंपनी, मे बी ही कैन टेक अदर शेयर होल्डर्स एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग. आर यू गेटिंग? तो यू शुड बी कॉन्वर्जेंट विद द लॉ ऑल्सो. इतना ही नहीं, बाकी जो आपके सप्लायर्स होने वाले हैं ऑफ दिस मशीन एंड ऑल, उनके साथ एग्रीमेंट एंटर करना पड़ेगा. तो यू विल नीड टू ड्राफ्ट द एग्रीमेंट. आर यू गेटिंग इट? नाउ यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल. सो इन माई ओपिनियन, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वन हु इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. समझ लो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप क्या होने वाले हो? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन. ये आज का जमाना है. मतलब आप मुझे बोलोगे कि सर आके कॉस्टिंग सिखाओ, तो क्या मैं सिखा नहीं सकता? मैं सिखा सकता, बट क्या मुझे सिखाना चाहिए? तो नहीं, बिकॉज टैक्स इटसेल्फ इज अ वास्ट सब्जेक्ट. सो लेट मी फोकस ऑन दैट. अभी आप आगे जाके इस 2-3 साल में यू विल लर्न all subjects. Okay, you will be introduced to all subjects.
यू विल बी टेकन इन टू डेप्थ्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, बट पॉइंट है आपको कौन से एक सब्जेक्ट में मास्टर होना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम. एग्जाम क्लियर करने के लिए यू विल हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आपको सब पता होना चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, बट उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट. नाउ दिस इज एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी. आप मतलब मार्केट में जाके ये नहीं देख सकते मुझे कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना है. वो आपका डिसाइड होगा टिल यू क्वालिफाई एज सीए. आफ्टर क्वालिफाइंग एज सीए इट विल बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू. भी फॉर एग्जाम्पल वो क्लाइंट मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है, तो मैंने तो उसको बोल दिया कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग रिक्वायर्ड आई विल हेल्प यू, बट ऑफकोर्स अभी ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट्स इज नॉट माई फोर्टे. तो मैं क्या करूँगा, आई विल कोलैबोरेट विथ वन लॉयर and I will outsource the work to the lawyer. Suppose costing is not 100% my forte, तो मैं क्या करूँगा, I'll hire one cost accountant or some expert in costing and outsource that work. So that client has to approach me, but I will approach various experts. If GST is my forte, then I will consult that client 100% in GST, but I'll give the other work to other experts. तो ये फाइनली होने वाला है. तो आपका अभी जो लर्निंग फेज है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है प्रॉपरली, हर एक सब्जेक्ट डीपली पढ़ना है, एंड बाद में जाके मोस्टली यू विल प्रैक्टिस ओनली इन वन सब्जेक्ट. देखो आप किसी भी, इवन इफ यू डोंट प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट यू जॉइन अ कंपनी, देन यू विल बी एम्प्लॉय. यू विल नॉट बी एम्प्लॉय इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, यू विल बी पुट इन वन डिपार्टमेंट. गेटिंग इट? फाइनेंस में भी सब डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो यू विल बी पुट इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट. तो आपको एक अभी 2-3 साल में ओवरव्यू लेना है. एंड ऑफ कोर्स अभी देखो फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ जब मैंने पढ़ा 2011 आई क्लियर्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जुलाई 2011. दैट टाइम इट वाज कंपनीज एक्ट 1956. तो आप देखो मेरा नॉलेज कितना आउटडेट हो गया. गेटिंग इट? सो आप ऐसा मत सोचो कि सीए होने के बाद पढ़ाई स्टॉप हो जाती है. सीए होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट होती है. मतलब अपने सीए कोर्स में जो है दैट इज 3 to 5% ऑफ एनी सब्जेक्ट. मतलब ऐसा मत सोचो कि आप सीए बन गए मतलब खत्म. सीए बन गए मतलब फुल टैक्स आता है, फुल एफएम आता है, फुल कंपनी लॉ आता है. ऐसा नहीं होता है. सीए हो गए मतलब 3 to 5% नॉलेज आ गया हर सब्जेक्ट का, एंड जिसमें एक्सेल करना है उसका नॉलेज लेते रहो. सपोज मैंने 2011 में, जस्ट इमेजिन 2011 में पास होने के बाद मैंने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना स्टॉप किया होता तो आई वुडंट बी एबल टू टीच जीएसटी. एज सिंपल एज दैट. जीएसटी था ही नहीं तब क्या था, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज. आज क्या है, जीएसटी. तो इन शॉर्ट आप बोलो आप कि टैक्स मैंने ज़्यादा कब पढ़ा होगा, सीए करते वक्त कि सीए होने के बाद में. समझ में आ गया? तो ऐसा मत सोचो कि अरे विल एस्केप समहाउ बिकमिंग सीए. नहीं, यू आर डूइंग सीए मीन्स आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, अनस्पोकन एग्रीमेंट हो गया खुद के साथ कि आई विल कीप ऑन स्टडिंग थ्रू आउट माई लाइफ. तो स्टडीज इज लाइक व्हाट यू कैन से, जैसे सांस लेते हो, खाते हो, नहाते हो, वैसे पढ़ना है. मतलब इट इज गोइंग टू बी विथ यू because you have determined to be professional. If you have determined to be professional, means no longer in your life after qualifying you will be selling goods, means you will neither be trader of anything, you will neither be manufacturer of anything, you will be sharing always and using always your knowledge. तो अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा. जस्ट 10 साल पहले, जस्ट सोचो 10 साल पहले ओला था क्या, ओयो, अमेजॉन नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ डायनामिक्स ऑफ बिजनेस चेंज. बिजनेस करने का वे क्या होता है, चेंज. तो उसको रेगुलेट करने का वे भी चेंज होगा ना. उसको रेगुलेट, इसलिए तो अमेंडमेंट्स आते हैं, इसलिए तो कंपनीज एक्ट 1956 तब था. आज क्या है, कंपनीज एक्ट 2013. करेक्ट? सो वास्ट चेंज, not only in the name of the act but of course in its regulation also. समझ में आ रहा है what I am trying to tell you? तो डायनामिक होने वाला है.
ये सब कुछ। एंड टैक्स तो सबसे डायनेमिक है, टैक्स तो सबसे डायनेमिक है, ओके, बिकॉज हर एक गवर्नमेंट की सोच अलग है, ट्रांजैक्शंस भी बदलते रहते हैं, गवर्नमेंट भी बदलती रहती है। अब सोचो टैक्स कितना बदलेगा, ईच ईयर टैक्स चेंजेस टू लॉट एक्सटेंट, ओके, बेसिक्स विल रिमेन सेम, बट जो बाकी डायनामिक्स है ना टैक्स के वो बहुत चेंज होते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो यस, समवन टेल मी, आपके हिसाब से टैक्स क्यों चाहिए इकोनॉमी में, एंड टैक्स एग्जैक्टली है क्या? यस, आई वांट 2 participants to answer, one from those who are watching live, when I say live na it will be Zoom, and one from those who are watching and attending face to face. चलो तो कौन आंसर करेगा, why tax and what is tax? Who wants to answer? First from face to face, who wants to answer? Yes, my simple question is, what is tax and why do we need tax in the economy? Yes, your name? अश्विनी, ओके अश्विनी, आपका फेवरेट नंबर कौन सा? नंबर, विच नंबर यू लाइक? 5, 1 2 3 4 5. You answer. What is tax? Tax is revenue collection by government for improving infrastructure. Okay, very good, very good. Your good name? Tushar. Yes, so Tushar has given one answer, that is, tax is a revenue. It is a source of revenue for the government and which will help in improving infrastructure. Acha. So I'll just modify, not only improving but also setting up infrastructure. And infrastructure is one of the thing. It can also be with respect to medicine, education. So in short, overall regulation and development of the economy. Okay. Yes, yes. Now who will answer from live batch? Pradnya, you want to answer? What is tax and why do we need tax? ये जो लाइव अटेंड करते हैं उनका तो डाउट ही है मुझे, देखते भी है कि नहीं? इशिता? Yes, sir. अच्छा चलो बोलो मुझे, व्हाट इज? कंफर्म नहीं पता, बट अरे अरे कंफर्म किसी को भी नहीं पता है यहाँ पे, फर्स्ट डे ना आज, हाँ, तो लास्ट डे पे कंफर्म पता होना चाहिए। आज बोलो जो बोलना है। Oh, very good. So, with the help of tax consultant, it can also be recoverable, but you have to certain amount. अच्छा, वेरी गुड। तो ना करेक्ट, एकदम अच्छा वो आपने बोल दिया। अभी आज के लेक्चर के एंड तक ये आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट शी इज सेइंग इज, कोई अगर एम्प्लॉय है एंड एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो सैलरी 100% उसके अकाउंट में नहीं आती है। मतलब उसका क्या बोलना है कि सपोज मेरा पैकेज 10 लाख है और मैं कहीं पे जॉब करता हूँ, मेरा पैकेज 10 लाख है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में नहीं आएगी, उसमें से कुछ अमाउंट जाएगा गवर्नमेंट को एज टीडीएस, इजंट इट इशिता? एज टीडीएस वो गवर्नमेंट को जाएगा, ऐसा उसका बोलना है, करेक्ट? तो यस, आपका अभी ये भी क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली होता क्या है। तो इशिता, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है आपके हिसाब से? It is kind of GST. अच्छा, तो नहीं वो जीएसटी नहीं है, तो अभी आप अच्छा इनकम टैक्स है, ठीक है। तो आपका भी ये थोड़े टाइम में एकदम मतलब बिफोर वी यू नो ब्रेक एट 11 o'clock ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलो अभी देखते हैं।
सो एकदम बेसिक सवाल मैंने आपको पूछा, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई डू वी नीड टैक्स. ओके, सो टैक्स इज नथिंग बट it is one of the source, it is one of the source of revenue for the government. मैंने अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है. फॉर गवर्नमेंट मैंने ये नहीं बोला है कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल. मैंने जस्ट क्या बोला है, इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, नॉट द ओनली वन. वन ऑफ द, बहुत हो सकते हैं सोर्सेस. ओके, it is one of the source of revenue for the government. Okay, this revenue will be used, this revenue will be used for regulating the economy. Okay, like for what? For yes, infrastructure development, for infrastructure development, for medicine, education, etc. Isn't it? अभी हम सब मेट्रो यूज़ करेंगे पुणे में, बट हमने कुछ उसके लिए कंट्रीब्यूशन दिया है क्या? डायरेक्टली तो नहीं दिया है. वी हैव गिवन कंट्रीब्यूशन वाया टैक्स. मोदी जी इज सेइंग फ्री वैक्सीनेशन. हैव वी गिवन एनी कंट्रीब्यूशन फॉर वैक्सीनेशन? No, maybe not directly, but in the form of tax. Okay, from your road till this place you could travel, okay, thanks to the infrastructure. आज भी infrastructure है, सही ना? आप रोड से आ गए तो वो infrastructure ही हो गया ना. So basically this all is infrastructure. Okay, it's not only for improving the infrastructure but also for regulating the infrastructure. तो ये सब taxes से ही तो होता है. Isn't it? You see and you will find many things happening because of taxes. And मतलब आज के बाद ना ही आप ऐसा टैक्स को ऑप्शनली लोगे और ना ही निग्लेक्ट कर सकोगे. ओके, क्या आपको लगता, व्हाट डू यू थिंक, यू ऑल हैव पेड टैक्स टिल नाउ और नॉट? क्या लगता है आपको, आपने अभी तक टैक्स पे किया है कि नहीं किया? किया है? यस. कैसे? जीएसटी पे किया है. ओके, लेने देने में जीएसटी गवर्नमेंट को चला गया है, ऐसा बोलना है उसका. क्या नाम है आपका? अच्छा, तो प्रेरणा थिंग्स, हाँ, कुछ ना कुछ जीएसटी तो गवर्नमेंट को गया है. कैसे गया है पता नहीं, बट गया तो है. इनडायरेक्ट टैक्स तो इनडायरेक्टली गया हो. ओके, गुड. किसी ने इनकम टैक्स पे किया है? नहीं, इनकम घर वालों ने किया है. करेक्ट. इनकम टैक्स तो पता नहीं पे किया है कि नहीं, बट फॉर श्योर जीएसटी पे किया है. करेक्ट. चलो देखते हैं. Now see, direct tax क्या होता है? The one which is literally as the name suggests, direct tax, the one which is directly paid to the government. Okay, so what is direct tax? It is a tax which is, yes, 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 which is directly paid to the government. अब ठीक है कि नहीं? अभी भी यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए इज इट विजिबल एंड आपके लिए अभी विजिबल है? अच्छा अच्छा, 13 का. ओके, इट इज द टैक्स विच इज directly paid to the government. The person on whom the tax is levied and the person who pays the tax to the government is one and the same. Okay, listen, if I am earning income, मैं अगर कुछ इनकम अर्न कर रहा हूं तो मुझे ही गवर्नमेंट को पे करना है. इस टैक्स को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स. ओके,
अपूर्वा समझ में आ गया? Yes, sir. वेरी गुड. Am I? So what is example of direct tax? Exactly. So income tax is an example of direct tax in India. हम of course India के डिस्कस करें, ठीक है? So income tax is an example of direct tax. Okay, what happens? The person who earns income, the person who earns income is liable to pay tax to the government. Okay, तो क्या होगा उसके वजह से? What will happen because of income tax? Funds will go in a common hutch pot, correct, and they can be used for general masses. तो क्या होगा? From 100 people, example, from 100 people, the tax will go in a common hutch pot which can be used for benefit of thousands. Okay, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जन इनकम टैक्स पे करता है. It's not necessary that every person pays income tax. Higher the income, higher will be the income tax, because वो परसेंट पे है ना. So higher the income, higher will be the income tax. Correct? समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होता है, या फिर उसका एंजॉयमेंट इक्विटेबल होता है. मतलब इफ मिस्टर अंबानी इज स्टेइंग इन एंटीलिया सोसाइटी, एंटीलिया इज बंगलो, ओके, एंड ही इज वेल्दी आफ्टर पेइंग द टैक्स. Getting the point? He has the right to be wealthy, no problem, but after giving a compulsory contribution to the government. Getting it? So उसके साथ साथ इकोनॉमी की भी ग्रोथ हो रही है. Okay, so why should government support someone like Ambani, or why should government support someone like Ratan Tata? Because they are not growing only for themselves, but they are making a growth in the overall economy automatically. Getting it? They are giving employment, that's a different thing, but out of the income they are also paying tax. तो ये एक अच्छी सिस्टम है इनकम टैक्स की. ओके, सो इट इज एग्जाम्पल, एंड दैट इनकम टैक्स कैन गो एज हाई एज 40%. मतलब वो जब 100 रुपये कमाता होगा तो 40 गवर्नमेंट को देता होगा, उसके बाद जो 60 है दैट इज अवेलेबल फॉर हिज पर्सनल एंजॉयमेंट. ओके, तो आपको सब यही सीखना है कि कैसे आपको क्लाइंट को बेस्ट एडवाइस देना है. इनकम टैक्स. ओके, गुड क्वेश्चन. आपका नाम? मधु. ओके, सो मधु का क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम पे अभी तक टैक्स क्यों नहीं लगाया है. सो गुड, योर नॉलेज इज परफेक्ट. एग्रीकल्चर इनकम हम देखने वाले हैं इज फुल्ली एग्जम्प्ट. एग्जम्प्ट का मतलब होता है टैक्स फ्री. Agricultural income in India is fully exempt as per section 10(1) of Income Tax Act. तो ऐसा 10 subsection 1 ने क्यों बोला होगा कि exempt agriculture income? बात यह है कि अब अभी हम आगे देखने वाले हैं, when we are talking about income tax, then tax on income, ये चार्ज करने का राइट किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. Okay, tax on income who can charge? Central government. Okay, but in India कैसे है? Union of India है and there are states also. मतलब एक फेडरल सिस्टम है जहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के कुछ अलग ड्यूटीज है एंड ईच स्टेट की कुछ अलग ड्यूटी. गेटिंग इट? मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर बिल्डिंग अ नेशनल हाईवे, देन द फंड्स फॉर दैट शुड कम फ्रॉम इनकम टैक्स. Not exactly income tax, but that should be funded by Union of India. If a state highway is built, maybe that is the responsibility of state government.
समझ में आ रहा है? देन इंडियन डिफेंस, इट विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. समझ में आ रहा है पॉइंट? तो हर एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, तो हर एक गवर्नमेंट के राइट्स भी अलग है. सो the right to collect tax on income is of central government. Now right to collect tax on agricultural income is of state government. मतलब यदि फ्यूचर में भी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाना है तो कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. एंड नन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज डन दैट येट, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो सिचुएशन ऑफ, not all farmers we would say, but you know, some farmers, or rather majority of the farmers are not in a good situation. They are dependent on the many factors, many natural factors also. So central government first of all can never charge tax on agricultural income unless there is an amendment in constitution. So central government लगा ही नहीं सकता tax. That's why central government has said in income tax act that tax on agriculture income is fully exempt, and none of the state government has charged yet. That's why agriculture income as such is fully exempt. ये हो गया इनकम टैक्स में. ओके, एंड जीएसटी का भी करेंगे डिस्कस. सो कैन आई से नेक्स्ट पॉइंट दैट इनकम टैक्स is collected by Union of India, that is which government? Yes, that is central government. तो टिल 14th या 16th अक्टूबर जो भी इनकम टैक्स का पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे उतना ही. उसके बाद इनकम टैक्स को हाथ कब लगाएंगे? बस जीएसटी खत्म होने के बाद. करेक्ट. तो बेसिक आज थोड़ा सा देखेंगे इनकम टैक्स का. ओके, पहले मैंने वो ट्राई किया था, आधा जीएसटी आधा इनकम टैक्स, बट फिर स्टूडेंट्स ने ही मुझे फीडबैक दिया कि सर फर्स्ट कंप्लीट ईदर ऑफ द टू. एक अच्छी लिंक होती है, क्योंकि आप देखोगे आगे जाके आप बोलोगे सर जब सम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे ना 3 घंटे के बाद भी क्लास कंटिन्यू करेंगे, मज़ा आता है. बट मतलब तो ऐसे 2 सब्जेक्ट्स मिक्स किए तो 1.5 घंटा मतलब कहाँ पे चला जाएगा समझ में भी नहीं आएगा. ओके, यस. सो इनकम टैक्स इज कलेक्टेड बाय यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. यहाँ तक क्लियर? अब देखो 2-3 और चीज़ें बताऊंगा तो वो आज ही क्लियर हो जाए इनकम टैक्स के बारे में तो अच्छा है. दोज बेसिक फ्यू थिंग्स. बट बिफोर दैट थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट देखते हैं, देन विल कम बैक टू इनकम टैक्स. टुडे ओनली टू सम एक्सटेंट वी हैव टू डिस्कस about income tax also. See, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? थोड़ा भी इनकम टैक्स समझ में आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इट इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली मतलब नॉट डायरेक्टली. वाह, देखो सिंपल एग्जांपल है. ये बॉटल परचेस किया, सपोज इस बॉटल की प्राइस इज 200 रुपीज. कितनी है? 200. ओके, सब जो ऑनलाइन देख रहे समझ में आ गया. ये बॉटल परचेस किया एक शॉप से, इसकी प्राइस है 200. सो शॉपकीपर वॉज विलिंग टू सेल दिस एट 200, बट गवर्नमेंट सेड वेट 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 वेट, अब हमारा हिस्सा है इसमें, वी वॉन्ट 18% ऑफ 200. सो एट व्हाट प्राइस विल शॉपकीपर सेल इट टू मी नाउ? वो अभी मुझे 200 को नहीं बेचेगा,
बिकॉज शॉपकीपर को 200 चाहिए बट गवर्नमेंट को 18% ऑफ 200 चाहिए. तो एट व्हाट प्राइस विल शॉपकीपर सेल इट टू मी? He will sell this bottle to me at 236. 200 plus 18%. अब देखो मजा देखो. ये ऑनलाइन वाले लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हमेशा. Yes. हाँ. Yes sir. यस मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो इसलिए यस कि समझ में Yes, sir. नहीं. अच्छा समझ में. अच्छा वेरी गुड. देखो ना मेरी व्यथा देखो, मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि मुझे आपके फेसेस भी नहीं दिख रहे तो कैसे पता चलेगा. ओके. हाँ ये बट बेटर है क्योंकि एटलीस्ट कुछ लोग मेरे सामने हैं, नहीं तो डेली घर पे कंप्यूटर के सामने में बकबक करते रहते. ओके यहाँ पे अच्छा है एटलीस्ट 50% ऑफ यू आई कैन सी. हाँ तो आई वॉज सेइंग 236 रुपीज आई विल पे टू द शॉपकीपर. शॉपकीपर विल कीप विथ हिम 200 and 36 he will give to government. बस इतना सिंपल है. 36 has gone to government. तो मुझे बोलो गवर्नमेंट का हिस्सा कितना है? 36. गवर्नमेंट was interested in charging this 36 rupees from whom? From not shopkeeper, from me. Why? अब देखो बात को समझो. आप बात को समझो. अभी फॉरगेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पता है? अमेजॉन, ये वो अमेजॉन प्राइम एंड देन नेटफ्लिक्स, यू नो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. थिएटर्स तो बंद है पिछले 2 साल से. सपोज थिएटर्स बंद है. अच्छा तो यू हैव लॉस्ट चांस टू वॉच मूवीज इन थिएटर. आई एक्सेप्ट. जब आप थिएटर में मूवी देखते हो, सपोज वो मूवी देखने के लिए आपने खर्च किए होते से जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 300 रुपीज प्लस 18% GST, मतलब 354 रुपीज का टिकट है. एंड ऐसे आपने 10 मूवीज देखे होते अगर लॉकडाउन नहीं होता तो. मतलब आपने 3000 रुपये खर्च किए होते एंड 3000 के ऊपर GST होता 540, 18%. चेक 3000 इंटू 18% 540. सो आपने 3540 रुपीज खर्च किए होते पिछले 2 सालों में मिनिमम फॉर वॉचिंग मूवीज, बट यू हैव नॉट स्पेंट इट. फॉरगेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. ऐसा मत बोलो कि सर ओटीटी पे इतना खर्चा किया, लेट्स कंपेयर. वो नहीं करना है कुछ. बट यू डिड नॉट कंज्यूम वन सर्विस. You did not consume one service of watching movie. That's why you have saved 3000 rupees plus 540 rupees tax. मतलब government has lost 540 tax. मैं क्यों बोल रहा हूँ? I'm just trying to tell you that government की सोच देखो. government को क्या चाहिए था? Government wanted tax on consumption, but since you did not consume, they did not get the tax. So what is indirect tax? Indirect tax is a tax on consumption. Income tax is a tax on income. समझ में आ गया? जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा इकोनॉमी में, जितना ज्यादा जीडीपी होगा, उतना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा. अब देखो, ऑब्जर्व, सब टैक्स से रिलेटेड है. मतलब आप जब पढ़ते हो टैक्स तो सब आपको उससे रिलेटेड लगने लगता है. जब फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, ओके, आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ दिनों के लिए अल्कोहल शॉप्स ओपन की, लिकर शॉप्स ओपन की. क्यों? उस पे सबसे ज्यादा टैक्स है. उसका कंजम्पशन नहीं हुआ ना तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आया. नाउ सी टैक्स का कितना इंपैक्ट होगा. अब देखो पेट्रोल हो गया 110 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर लीटर. सपोज उसके ऊपर हम टैक्सेस का एलिमेंट हटा देंगे तो पेट्रोल की प्राइस होगी, पता है क्या कितनी होगी? 40 to 50 रुपीज पर लीटर. इतना ज्यादा कंपोनेंट है टैक्सेस का पेट्रोल के ऊपर. अब देखो वो जीएसटी नहीं है, वो बाकी टैक्सेस है.
So indirect tax means not only GST. Indirect tax has a lot of taxes, but still they are trying to streamline with having only one tax as GST. They are trying to streamline, but अभी ऐसा हुआ नहीं है कि सब चीजें GST में आ गई है. सब चीजें सपोज GST में आ गई ना, पहला प्रॉब्लम गवर्नमेंट को होगा. समझ में आ गया? क्योंकि GST का हाईएस्ट रेट अभी है 40%, बट वो हाईएस्ट से भी हाइयर टैक्सेस है. okay, आगे जाएंगे तो समझ में आएगा आपको क्या है. सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज कलेक्टेड व्हाट? इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. इट इज कलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है? दैट इज इट्स लेवाई एंड कलेक्शन इज फ्रॉम नहीं डिफरेंट पर्सन्स. डिफरेंट पर्सन्स का मतलब क्या है? ये बॉटल है ना, बॉम्बे स्टेशनरी से परचेस की सपोज, तो गवर्नमेंट विल गो एंड कलेक्ट 36 रुपीज फ्रॉम बॉम्बे स्टेशनरी. बट किसके पॉकेट से गए? मेरे पॉकेट से. तो पॉकेट किसी अलग का, लेकिन कलेक्शन किसी अलग से. इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट में क्या हुआ? मेरा ही टैक्स मेरे ही पॉकेट से गया, डायरेक्ट टैक्स. मेरा टैक्स गया, बट किसी को मैंने पहले क्या किया? पहले उस मिडलमैन को दिया, डीलर को दिया. डीलर ने किसको दिया? गवर्नमेंट. समझ में आ गया? ओके, तो सपोज मैंने 236 रुपीज दे दिए बॉम्बे स्टेशनर्स को. उसके बाद गवर्नमेंट विल बी आफ्टर होम, आफ्टर मी और आफ्टर दैट डीलर टू पे दिस, टू कलेक्ट दिस 36 रुपीज. डीलर, मेरा काम खत्म. Once I purchase the goods or consume services, if you go and watch a movie in City Pride Theatre and you pay them 354 rupees ticket amount, then it is a relation between government and City Pride. Government will not stop you. You wait, आपने मूवी देखी, टैक्स कहाँ पे? आप बोलोगे क्या? मैंने टिकट परचेस किया, दैट टिकट इज ऑफ 354, नीचे लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. बात खत्म. यू गो एंड कलेक्ट फ्रॉम द सप्लायर. वो सप्लायर हो गया ना. सिटी प्राइड थिएटर सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, बॉम्बे स्टेशनर सप्लायर ऑफ गुड्स हो गया. समझ में आ गया? सो इट्स लेवी एंड कलेक्शन इज फ्रॉम डिफरेंट पर्सन्स. उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ indirect tax in India? GST, goods and services tax, customs, excise, VAT. See, excise, VAT are on limited goods, but it still continues, etc. There are many more such taxes are examples of indirect taxes in India. Clear? So you know, it is tax on consumption of goods and or services. Okay, see, usually it is collected from whom? Usually it is collected from, नहीं, कंज्यूमर से नहीं कलेक्ट होता. Usually it is collected from a supplier, but it is burden on whom? But it is burden on yes, it is burden on consumers. तो गवर्नमेंट का सोचने का क्या वे है पता है क्या? आप सपोज 200 रुपए इस वाटर बॉटल के लिए अफोर्ड कर सकते हो, तो श्योरली यू कैन अफोर्ड 18% ऑन दैट टू गवर्नमेंट. जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा टैक्स. ओके सर, वी पे टैक्स ऑन इनकम, वी स्पेंड द सेम इनकम ऑन द गुड्स,
So we are paying double tax on the same income. अच्छा, good. I am so happy that you are thinking in so much depth. उसका सवाल समझ में आ गया? मेरा इनकम 100 है, उस 100 में से 30 गवर्नमेंट को गए, 70 बचा. अब देखो रोशनी ने सवाल पूछा है 70 में से कितना स्पेंड करना है मेरे ऊपर है ना. इफ आई डोंट स्पेंड एनीथिंग आउट ऑफ दिस 70, तो आई विल नॉट पे एनी इनडायरेक्ट टैक्स टू गवर्नमेंट. 70 में से 50 स्पेंड किया तो कहाँ पे स्पेंड कर, तो इसका भी, इसके ऊपर भी इनडायरेक्ट टैक्स डिपेंड है. सो इनडायरेक्ट टैक्स डिपेंड्स ऑन माय, आई वुड से, टेस्ट फॉर कंजम्पशन. ओके, उसमें से सपोज मैंने मर्सिडीज बेंज ली गाड़ी, तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर टैक्स ज्यादा होने वाला है. जितनी चीज लग्जरियस उतना इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा, जितनी चीज बेसिक नेसेसिटी उतना इनडायरेक्ट टैक्स कम. रोशनी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. इनकम टैक्स नेसेसरीली हैव टू पे ऑन माय 100 इज माय इनकम. सो 100 के ऊपर मेरा इनकम टैक्स तो आ ही गया है. सपोज 30 एज्यूम, 100 कुड बी एनीथिंग, 100,000, 100 lakhs, कुछ भी हो सकता है. तो 70 बचा, 70 में से स्पेंडिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड है इनडायरेक्ट टैक्स. यस, एंड एवरी इकोनॉमी विल हैव दिस 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, नॉट ओनली इंडियन इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में जाओ ये 2 टाइप के टैक्सेस होंगे. ओके, जैसे आप चले गए मालदीव्स में, शायद वहां पे इनकम टैक्स नहीं है बट इनडायरेक्ट टैक्स है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टैक्स. सपोज आप चले गए दुबई में, तो वहां पे इनकम टैक्स नहीं है बट यूएई वैट है. यूएई वैट, बट ये एक्सेप्शनल कंट्रीज है जहां पे इनकम टैक्स नहीं है. बट बाकी कौन सा भी आप नेशन ऑब्जर्व करोगे, दे विल हैव बोथ टैक्सेस इन देयर इकोनॉमी, डायरेक्ट ऑल्सो एंड इनडायरेक्ट ऑल्सो. बिकॉज डायरेक्ट टैक्स में बहुत लिमिटेड लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है. आप समझ लो, डायरेक्ट टैक्स में बहुत लिमिटेड लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है. आप बाद में गूगल कर सकते हो कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स. 1.5 to 2, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. शॉकिंग ना. सो कैन आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1 crore 40 lakhs, can you allow only about say maximum 2 crore people to pay tax? ऐसा हो ही नहीं सकता. तो if we keep only income tax, only 2 CR people out of 140 CR will pay the tax. तो बाकी को कैसे इंक्लूड किया जाए? बाकी लोग इनकम नहीं कमाएंगे बट कहीं ना कहीं कंजम्पशन तो होगा. आप बोलोगे ऐसे कैसे इनकम नहीं कमाएंगे कंजम्पशन होगा, ऐसे कैसे? वैसे नहीं है. इंडिया में टिल 5 लाख रुपीज यू डोंट पे एनी इनकम टैक्स. मतलब मैं एक ऐसा इंडिविजुअल हो सकता हूं ना जिसका इनकम 5 लाख से कम है, मतलब आई विल बी आउट ऑफ इनकम टैक्स, बट वो 5 लाख के कम वाली इनकम में से मैं कंज्यूम तो करूंगा, तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करना पड़ेगा. दैट इज द पॉइंट. और इवन इफ आई हैव अ मेंटालिटी ऑफ नॉट डिस्क्लोजिंग माय करेक्ट इनकम, स्टिल आई विल लाइक टू स्पेंड, तो मुझे वहां पे तो कैच करेंगे, मतलब वहां पे तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन होगा. सो इस तरह से दोनों टैक्सेस नेसेसरी. सिर्फ ये चलाएंगे ना इनकम टैक्स, तो वी विल हैव अ मोर फिस्कल डेफिसिट. डेफिसिट मतलब इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर विल बी वे हाई देन इकोनॉमीज इनकम रेवेन्यू. वो ऑलरेडी हो रहा है इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिंग बोथ दिस टैक्सेस. अभी सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो इकोनॉमी विल नॉट बी एबल टू रन, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. हमें डेट लेना पड़ेगा बाकी कंट्रीज, फुल मतलब फ्लिप साइडेड हो जाएगा. दोनों टैक्सेस मैंडेटरी है. ओके, नाउ अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट टैक्स विच गवर्नमेंट कलेक्ट्स. व्हाट डू यू थिंक? सो हम ना डिस्कस करेंगे अबाउट जीएसटी, बिकॉज हमें जीएसटी है सिलेबस में. we'll discuss about GST only. At final level you will study about customs and no other taxes you will study in your CA syllabus. Only GST and customs. बाकी indirect tax पढ़ने नहीं है because वो state wise change होंगे, वो limited commodities पे है. Moreover, government is trying to bring
ऑल थिंग्स अंडर जीएसटी, मतलब पेट्रोल डीजल इस पे अभी जीएसटी नहीं है, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑल्सो अंडर जीएसटी. ओके, so if I think about GST, it is a source of revenue for both, who both, central as well as, yes, state governments. कैसे, how, Vriti, Snehal, how is it revenue for both central and state government, GST? Yes. नहीं नहीं, yes नहीं, कैसे, how? Of the example you gave, 36 rupees, out of which half goes to central government and half goes to. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है. मतलब जब भी आपने देखा होगा बेसिक जीएसटी, सपोज मैंने जो एग्जांपल दिया था 200 रुपीज़ की बॉटल है, ये वाटर बॉटल 200 की है, तो 18% जीएसटी है, 9% विल गो टू सेंटर, 9% विल गो टू स्टेट. 300 रुपीज़ का मूवी टिकट है, करेक्ट, 9% ऑफ दैट, that is 27 will go to center, 27 will go to state. Yes, so GST is a source of revenue for both central as well as state government. समझ में आ गया सबको? Easy. Customs है ना, customs is import duty, export duty. import export पे होता है customs, उसके बारे में फाइनल में पढ़ेंगे. Okay, customs is revenue of only central government, and customs तो will continue to exist. customs का GST के साथ लेना देना नहीं है, it will continue irrespective of GST, वो continue होने वाला है. ओके, तो आपको बेसिक समझ में आ गया अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. डिड यू अंडरस्टैंड बेसिक अबाउट डायरेक्ट टैक्स? अब देखो, एकदम बिगिनिंग में आई थिंक इशिता हैड गिवन वन एग्जांपल, एम्प्लॉय वाला, तो वो एक थोड़ा बेसिक बता के नेक्स्ट सेशन में विल डिस्कस 100% अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, तो थोड़ा अभी डायरेक्ट टैक्स की तरफ आते हैं एंड डिस्कस करते हैं थोड़ी बेसिक चीज़ें जो इस पॉइंट पे ही आपको पता होगी तो अच्छा होगा. अच्छा, तो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम, इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन कंजम्पशन. आपने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ा है, क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू मेक इज फॉर अ फिनेंशियल ईयर और इट इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. Correct? So, in short, do you agree with me that income is a periodic concept? मतलब एक बॉटल बेच के मैं इनकम नहीं निकाल सकता. क्यों? ऐसे मतलब स्टेशनरी वाला शॉप है, उसने एक बॉटल बेची 200 रुपए को, उसमें से इनकम निकालना मुश्किल है. यू विल से सर वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट ईच यूनिट. यस, प्रॉफिट ईच यूनिट निकाल सकते हैं, but finding income is difficult. Why? To run his shop, he is paying monthly rent, he is paying monthly salary. तो इनकम क्या बन जाता है? इनकम becomes a periodic concept. तो गवर्नमेंट does not charge you income tax on each unit sold. Government charges you income tax for a particular period. That period in India is financial year. Okay, so income tax is levied on income of a financial year. Okay, समझ में आ गया? Income tax is levied on income of a financial year. Such financial year, anyone knows, is called as dash, is called as, mind you, previous year under income tax.
थोड़ा आपको इंग्लिश बाजू में रखना है यहाँ पे. What did I say? That the financial year for which you are liable to pay income tax is called as previous year. क्या हो गया? Suppose Snehal is employee in a company and she does the job in the company for financial year 21-22. That is 1st April 21 to 31st March 22. So whatever salary she gets for financial year 21-22 will be called as salary for PY 21-22. क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को भी, ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूँ क्योंकि आई कैन नॉट सी योर एक्सप्रेशंस, और फेस टू फेस वाले को तो एक्सप्रेशंस. ओके, हाँ, गुड. सो डिड यू अंडरस्टैंड? PY इज द फिनेंशियल ईयर फॉर इन विच द इनकम इज अर्नड. तो उसको प्रीवियस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितना भी फिनेंशियल ईयर में अर्न किया उसके ऊपर एग्जैक्ट कितना अर्न किया एंड एग्जैक्ट टैक्स कितना है ये कैलकुलेट होगा नेक्स्ट ईयर. व्हाट इज एग्जैक्टली अर्नड इन FY 21-22 and what is exact tax on that will be calculated in next year. That is the year immediately succeeding previous year. The year which immediately succeeds previous year is called as assessment year. तो अपने इनकम टैक्स में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, PY, AY. PY is the year in which income is earned. AY is the year in which income is assessed to tax. Assess मतलब आप एग्जाम देते हो तो पेपर्स एसेस होते हैं एंड आपको मार्क्स मिलते हैं. तो एसेस मतलब चेक, वेरिफिकेशन, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं असेसमेंट. Okay, so see what I am telling you now. Exact income and tax payable for the PY is computed in the, yes, for the PY is computed in the assessment year. That is year which immediately succeeds yes friends, 22. that is the financial year which immediately succeeds previous year. So example, PY 21-22, PY 21-22 PY 21-22 income will be assessed to tax in AY, yes, 22-23. समझ में आ गया? PY 21-22 income will be assessed in AY 22-23. Ishita, clear? इशिता, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes. ओके.
अब देखो, बट वो तो बोल रहे थे कुछ टीडीएस होता है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बट मैं तो बोल रहा हूँ कि 21-22 का इनकम एग्जैक्टली कब कैलकुलेट करेंगे, 22-23, बट मैंने ये नहीं बोला कि पे 22-23 में करेंगे। थोड़ा है कंफ्यूजिंग, बट देखो समझ में आएगा इफ यू फोकस। इनकम टैक्स इज नॉट अ 100% पोस्टपेड टैक्स। मतलब जब मैं अर्न कर रहा हूँ 21-22 में, तो मैं पे कब करूँगा, 21-22 में ही। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था 22-23 में, मैंने ये नहीं बोला था 22-23 में टैक्स पे होगा, 22-23 में एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा, बट 21-22 में पे तो करना पड़ेगा ही। सी कैसे होगा, 21-22 इफ आई एम डूइंग बिजनेस इन 21-22 और डूइंग दिस कोचिंग सर्विसेज, तो मुझे आइडिया तो है कि 21-22 में मैं टोटल कितना अर्न करूंगा, आई कैन एस्टिमेट, तो ऑन एस्टिमेटेड बेसिस आई विल पे टैक्स इन 21-22 फॉर 21-22, बट एग्जैक्ट कितना है वो कब डिटरमाइन होगा, 22-23। समझ में आ गया। तो सपोज मुझे लगता है कि मेरा टैक्स पेएबल होने वाला है 2 lakhs फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22, then I should pay 2 lakhs to the government during previous year 21-22. अब एग्जैक्ट डिटरमाइन कब होगा, 22-23। 22-23 में जाने के बाद मैंने मेरा एग्जैक्ट इनकम निकाला, एग्जैक्ट टैक्स निकाला, और वो आ गया 2,30,000। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, पे रिमेनिंग 30,000 टू द गवर्नमेंट। समझ में आ गया, दैट इज द पॉइंट। अब देखो यहां तक सब ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ गया, अपूर्वा, अमय, यस सही, यस इशिता, आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी टीडीएस का बोलने वाला। हाँ अब देखो, मैं बिजनेस नहीं करता, प्रोफेशन में नहीं हूँ, मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ, तो कंपनी को पता है मुझे सैलरी कितनी देने वाले हैं। कंपनी नोज हाउ मच दे आर गोइंग टू पे मी एज सैलरी ड्यूरिंग PY 21-22। तो वो कंपनी क्या करेगी, उस सैलरी के ऊपर मेरा टैक्स कैलकुलेट करेगी पहले से ही। तो कंपनी नोज दे आर गोइंग टू गिव मी 10 lakh एज सैलरी ड्यूरिंग PY 21-22, they know tax on that is say 1,20,000. So 1,20,000 divided by 12 months, 10,000 rupees they will do as my TDS. देखो नाम में सब कुछ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी। वो सैलरी मिलते वक्त ही 10,000 गायब हो जाएंगे उसमें से, दैट इज TDS। गायब होके कहाँ पे चले जाएंगे, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इनकम टैक्स है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाएंगे। कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स ही है, बिकॉज ओनली मोड ऑफ पेइंग चेंज, इंस्टेड ऑफ आई गेटिंग द फुल सैलरी एंड आई पेइंग 10,000 टू गवर्नमेंट ईच मंथ, गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन किसको दिया है, पेयर को ही दिया है, दैट यू व्हाइल पेइंग टू पे डिडक्ट हिज टैक्स एट सोर्स। तो ऑफ कोर्स ये पे का हो गया इनकम टैक्स, जस्ट मोड ऑफ पेमेंट चेंज हो गया। इंस्टेड ऑफ आई गेटिंग 10 lakhs एंड पेइंग 120, दे हैव गिवन मी इन हैंड 880 एंड 120 आई हैव ओनली पेड टू गवर्नमेंट, बट मैंने फिजिकली गवर्नमेंट के साथ जाके पे नहीं किया, मेरे बिहाफ पे किया एम्प्लॉयर, पेयर। इसी तरह समझ में आ गया, yes, and this is also an income tax. Okay, that this whatever employee is getting after TDS, that TDS element is also of income tax. Okay, so see,
it should be noted that income tax, though exactly assessed in it should be noted that income tax, though exactly assessed in AY for the PY, it will be paid in the PY itself. In which form? In form of, very good, advance tax and TDS. If anything remains payable, अब अपने हिसाब से लिखो, मैं फ्लो में लिख रहा हूँ, I'll give you time to write. If anything remains payable, then it will be paid in the AY in the form of, इसको बोलते हैं सेल्फ assessment tax, in the form of self assessment tax. Say rupees 2,30,000 was total tax payable for PY 21-22, out of which rupees 2 lakh is paid in PY 21-22 as advance tax and TDS, then balance rupees 30,000 will be paid in AY 22-23 as, yes, you take your time, huh? कुछ टेंशन नहीं है. मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डे वन पे आपको पता होना चाहिए कि TDS क्या है. तो आप कल जाके बोलोगे TDS इज डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स. नहीं, TDS is a way of collecting tax. Advance tax is a way of collecting tax. Self assessment tax is a way of collecting tax. In case extra amount is paid as tax, ये किसी को डाउट होगा ना, एक्स्ट्रा पे किया तो PY में, in case extra amount is paid as tax in the PY, then balance will be refunded. refund मिलता है उसको. तो ये इशिता बोल रही थी स्टार्टिंग में कि कुछ एक्स्ट्रा पे किया तो वो रिफंड मिलता है. दैट इज दिस रिफंड. यस यस, एस्टिमेशन. प्रेडिक्शन नहीं बोलेंगे, एस्टिमेशन बोलेंगे. गलत भी हो सकते हैं एस्टिमेशन, देन सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे कर, एंड गलत होके ज़्यादा पे किया तो रिफंड भी मिलेगा. बट एस्टिमेट करना कंपलसरी. थोड़ा डिफिकल्ट है बट कंपलसरी है, बिकॉज गवर्नमेंट तो कैनॉट कीप ऑन वेटिंग फॉर यू टू फर्स्ट अर्न देन पे. सो गवर्नमेंट तो बोलती है पे एज यू अर्न स्कीम चलाएंगे.
ये जो डिटेल होंगे ना कि कितने टैक्सेस पेएबल है, कितने टैक्सेस पे किए हैं, ये डिटेल्स गवर्नमेंट को हम डिक्लेयर करेंगे बाय फाइलिंग समथिंग कॉल्ड एज इनकम टैक्स रिटर्न. सो आईटीआर का मतलब क्या है? आपने आईटीआर तो बहुत टाइम सुना होगा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आईटीआर लॉट ऑफ टाइम्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीआर? इनकम टैक्स रिटर्न. So ITR is just a declaration of total income, income tax payable and income tax what? चलो, तो ये सब आप लिख लेना. टेक योर टाइम एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क. तो आपको एटलीस्ट इनकम टैक्स का पीवाई, एवाई, आईटीआर, एडवांस टैक्स, टीडीएस, इस वर्ड से एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन हो गया. किसी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को डाउट पूछना है? यस, नो? आप में से किसी को डाउट पूछना है? Okay, there is one doubt coming up. Sir, TDS is directly deducted from the salary. Then do we have to pay income tax on the balance salary also? Good. So Sakshi, right? Sakshi, what happens is, Yes, sir. yes, what happens is employer will check what is the salary of the employee. Okay, that means suppose Sakshi, your salary for the year is 12 lakh. Okay, and you have no other income, only salary income you have. Then employer will take your total income as 12 lakh and calculate tax on that, on the entire 12 lakhs. So he will see to it that your tax payable is equal to your tax deducted at source. So you will not have to pay any self assessment tax. That he will try to do. Getting the point? Yes, sir. Thank you. Yes. But in case Sakshi, you are earning suppose FD income, house property income, and if you don't give its details to your employer, then your employer will not do, he will do only TDS on considering your total income as salary income. But आपने बाकी डिस्क्लोज तो नहीं किया है, तो आपको बाकी एडअप करके टैक्स लायबिलिटी क्या आती है वो निकालना पड़ेगा माइनस TDS, एंड बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स. Got it? Okay. Yes, yes.
चलो ये अब जो 8-9 लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, ये हमेशा ऑनलाइन करेंगे कि कुछ दिनों के लिए? व्हाट इज द प्लान? क्या प्लान है? नहीं सर, मैं कल से आने वाली हूँ, एक्चुअली आज तबीयत थोड़ी खराब है ना, ओके इसलिए आ रही हूँ। ओके ओके, बाकी लोगों के क्या प्लान्स है? सर आई एम गोइंग टू अच्छा, फेस टू फेस. Pradnay is saying face to face. Sakshi said face to face. Ishita also is face to face. Vriti is saying will be attending soon. Sir, I'm going to conduct on Zoom only. अच्छा But this month I'll see your admission. अच्छा, so you will be continuing on Zoom. Okay, Sakshi is also saying Zoom. Okay, will be attending soon. Okay. Online, Amma is saying online. Good. मतलब आप जो ऑनलाइन देख रहे हो तो आपको कन्वीनियंट है ना? जस्ट इंश्योर दैट. साइज से ऑनलाइन, फैंटास्टिक, गुड. चलो, so if there are no doubts, then we can stop for this session. See you back at 11:30. Then we will focus much more on indirect tax. आपको एक टोटल सिस्टम समझ में आ जाएगी इनडायरेक्ट टैक्स की, क्या होता है. उस इनडायरेक्ट टैक्स जब मैं बोलूँगा आप, उसका मतलब है जीएसटी. तो आपको जीएसटी की एक फुल सिस्टम समझ में आ जाएगी. एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाएगा. आपने क्या बोला, 50% इज CGST, 50% इज SGST. बट ये भी तो पॉइंट है ना कि वो 50% SGST है, वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए. तो वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, दैट हाउ 50-50 इज डिवाइडेड. 50 सेंटर इज फिक्स्ड, बट बैलेंस 50 टू विच स्टेट, दैट इन डेप्थ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो सफिशिएंट है ना आधा घंटे का ब्रेक? मोर देन सफिशिएंट, राइट. सो सी यू बैक एट 11:30. ओके, so that's it for this session.